हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 द पार्लियामेंट्री सिस्टम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या है, किस तरह से इसमें क्या काम होता है या क्या क्या चीज़ें इसमें हैं वो हम आज इसमें देखेंगे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लोअर डॉक्यूमेंट। तो ये एक डॉक्यूमेंट की तरह नहीं है जैसे लोअर के पास होते हैं। इट इज़ अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ द एज। और इसकी जो स्पिरिट है, मतलब एक तरह से इसकी जो भावना है वो जो है आगे की जो एजेस हैं वो हमेशा के लिए वैसी ही रहेंगी। ये भी किसने बोला था? अलादी कृष्ण देव अय्यर ने 1949 में, जो पहले ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा वो ही है। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं आपके बिग क्वेश्चंस। व्हाट इज इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड हाउ इज इट्स स्ट्रक्चर्ड? So India's parliamentary system is a form of government where the executive government is drawn from the legislative and remain accountable to its. In this system, the people elect their representative to the Lok Sabha and the majority forms the government. Structure क्या है India's parliament का? At the union level, the parliament consists of the president, Lok Sabha and Rajya Sabha. This is a bicameral system. The Prime Minister leads the government and is supported by the Council of Ministers who are accountable to the लोक सभा। यानी कि अगर कुछ भी होगा, पॉलिसीज है या कोई भी चीज़ होती है तो उन्हें अकाउंटेबल है लोकसभा में, वहाँ पे उन्हें अपनी पॉलिसीज या चीज़ों के लिए आंसर देना होता है। एट द स्टेट लेवल, each state has its own legislative and executive called its state assembly. Some states have two houses, the Vidhan Sabha and the Vidhan Parishad. अ व्यू ऑफ द चैम्बर ऑफ द राज्यसभा, जो कि प्रेस गैलरी में हमने ऑलरेडी ऊपर फोटो भी देखा था। वट आर द की फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट? सो द पार्लियामेंट परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, इट प्रोटेक्ट द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंश्योर डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म एंड मेक्स laws to uphold fundamental rights and directive principle. Legislative function, it makes new law, change old ones and remove outdated laws. Financial functions, it passes the budget and checks how the government spends public money. Executive control, it keeps a watch on the government work through questions, debate and discussion. अब ये ओल्ड पार्लियामेंट हाउस जो है उसका फोटो यहाँ पर दिया है। What are the role of the legislature and the executive in India's parliamentary democracy? So in India's parliamentary democracy, the legislature and the executive perform different but related functions. The legislative makes law, amend old ones, and ensure the executive follows the constitution. It also represents the people's voice and check the government work through debates, question hours, and the budget. The executive, led by the Prime Minister and the Council of Ministers, is responsible for implementing law and running the daily administration of the country. It remains answerable to the Lok Sabha for all its action and decisions. How are the legislative and the executive organized at the union and the state level? So India has a federal system where both the union and the state have their own legislative and executive. At the union level, the legislative is bicameral, consisting of Lok Sabha and the Rajya Sabha, along with the president. The executive includes the president as the head of states and the prime minister with the council of ministers who run the government. At the state level, the legislative may be unicameral, यानी कि एक ही होता है, और bicameral दोनों भी हो सकते हैं. And the executive includes the governor, chief minister and the council of ministers. Now, the grade 8th student from Nalanda University, Nalanda Vidyalaya were on a school trip to Delhi. So Delhi में school trip के लिए वो लोग आए हैं. Usha, Sukhvinder, Anjali, Joan and Farida were specially excited to visit the न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब ये बच्चे जो हैं बहुत एक्साइटेड है जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, संसद भवन जो बना उसको देखने के लिए। नाउ इट्स नॉट स्क्वायर और राउंड, इट इज लाइक अ सॉफ्ट ट्रायंगल। तो बोल रहे हैं कि ये ना तो स्क्वायर की तरह है ना ही ये जो है राउंड है, ये जो है ट्रायंगल की तरह लग रहा है। ठीक है, मतलब सॉफ्ट ट्रायंगल। द थ्री साइड डिजाइन रिफ्लेक्ट बैलेंस, इंक्लूसिविटी एंड पर्पस। अब ये जो तीन साइड्स यहाँ बनाई गई हैं इनका मतलब है बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना, इंक्लूसिविटी यानी कि समावेशन करना, और पर्पस जो आपके उद्देश्य हैं वो सब।
इट ऑल्सो यूज ग्रीन कंस्ट्रक्शन, कटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय 30%। और इसमें जो है ग्रीन जो कंस्ट्रक्शन चीज़ें हैं या हरित निर्माण का जो होता है वो यूज़ किया गया ताकि इलेक्ट्रिसिटी का 30% कम यूज़ हो सके। इनसाइड या कम हो गया जिसकी वजह से इनसाइड दे सो वॉल डेकोरेटेड विद क्रेविंग्स लाइक पीकॉक, लोटस, ट्राइबल आर्ट्स, टेम्पल पैटर्न एंड फ्रीडम फाइटर्स। और जब वो अंदर गए तो उन्होंने बहुत सारी जो है अलग अलग पेंटिंग्स वहाँ पर देखी या अलग अलग चीज़ें बनी हुई थी जैसे पीकॉक की, लोटस वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने देखी। इट्स फील लाइक अ म्यूजियम ऑफ इंडिया, ये तो म्यूजियम की तरह लग रहा है इंडिया के। द अशोक एम्बलम, दिस न्यू बिल्डिंग हाउस इज सो मैनी एंशिएंट सिंबल। अब इस बिल्डिंग हाउस में तो बहुत सारे जो हमारे पुराने सिंबल जो हैं उसकी तरह ही है, एक प्राचीन प्रतीक की तरह ही ऐसे लग रहा है। एग्जैक्टली, डेमोक्रेसी मस्ट लुक अहेड बट नेवर फॉरगेट इट्स रूट्स, कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में क्या है, हमेशा आगे देखना है लेकिन कभी भी जो आपकी रूट्स है जहाँ से शुरू किया उस चीज़ को नहीं भूलना है। अब आता है इंट्रोडक्शन। इंडियाज इंडिपेंडेंस वॉर अचीव्ड थ्रू ग्रेट सेक्रीफाइसेस बाय मैनी पीपल ऑफ द कंट्री आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो इंडिया की इंडिपेंडेंस जो मिली थी वो बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारे सालों तक जो है बहुत सेक्रीफाइसेस किए थे, तब उन्हें ये इंडिपेंडेंस मिली थी। और सेक्रीफाइसेस किन के अगेंस्ट उन्होंने सेक्रीफाइस किए या जो है स्ट्रगल किया था, जो कॉलोनिकल रूल था, जो ब्रिटिश रूल था, जो हमने पढ़ा उसके लिए उनसे जो है उन्होंने स्ट्रगल किया, फाइट की, उसके बाद ये इंडिपेंडेंस मिली थी। द सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री कुड नाउ मेक डिसीजन अबाउट देयर ओन गवर्नेंस। अब ये जो हमारी फ्री कंट्री है इसके सिटीजन जो हैं अपनी कंट्री के लिए अपनी गवर्नमेंट उन्हें कौन सी बनानी है उसके लिए खुद से डिसीजन ले सकते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस न्यू अपोज इन द लाइफ ऑफ आवर नेशन वॉज द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इस चीज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था, जो सबसे इम्पोर्टेंट कदम आप बोल सकते हैं हमारे नेशन की स्टार्टिंग में, वो था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूट ड्राफ्ट करना, यानी कि जिसमें रूल वगैरह होंगे, लॉज होंगे, राइट्स बताए जाएंगे क्या है किसका है। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप पैटर्न बता सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कदम आप बोल सकते हैं जो इसके लिए बहुत ज़रूरी था। दिस कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट laid foundational principle for the nation, including that of universal adult franchise, which guarantees all adult citizens of the country the right to vote, irrespective of their social or economic background, gender, race और religion। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जो बात हुई है, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव था डॉक्यूमेंट, इसमें क्या था, फाउंडेशनल जो प्रिंसिपल्स थे नेशन के लिए, ठीक है, क्या क्या उन्होंने सोचा कि इस नेशन में क्या क्या चीज़ें या क्या क्या सिद्धांत जो है मौलिक अधिकार जिन्हें हम बोलते हैं क्या होने चाहिए, जिनमें से एक क्या था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सबको वोट का अधिकार है, जो गारंटी देता था कि जो भी अडल्ट सिटीजन है, यानी कि जो 18 या 18 साल से बड़े हैं कंट्री में, उनको गारंटी थी कि वो जो है अपना वोट डाल सकते हैं, उनके पास वोट डालने का अधिकार है, इररिस्पेक्टिव वो किस कास्ट के हैं, इकोनॉमिक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, जेंडर क्या, रेस क्या, रिलीजन क्या है, इससे उनको कोई भी मैटर या कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको जो है वोट डालने का अधिकार है, ये उसकी गारंटी देता था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु बिकेम मेंबर ऑफ द लोकसभा। अब जो लोग हैं इंडिया के वो डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो क्या करता है, लोकसभा में मेंबर बनता है। A majority group from among these elected representative form the government। अब इसी तरह से हर जगह से जो है रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते हैं और वो ही जो है एक गवर्नमेंट को बनाते हैं। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये जो संसद भवन है, जो पार्लियामेंट है, वो क्या है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। ये क्या करती है, इट मेक्स लॉ फॉर द कंट्री। इट कॉम्प्राइजेज ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड कंट्रोल एंड गाइड द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग लोगों द्वारा चुने गए हैं, उनको जो है बताती है, कंट्रोल करती है, उनको गाइड करती है कि गवर्नमेंट का काम क्या है या उन्हें किस तरह से काम करना है। द गवर्नमेंट कैन देयरफॉर बी सीन एज फंक्शनिंग विद द पीपल्स कंसेंट। और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है किस तरह से काम करती है, लोगों की सहमति के साथ, ठीक है, काम करते हुए दिखती है। देयर हैव बीन 17 लोकसभा सिंस द फर्स्ट वन इन 1952। जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे कितनी थी, 17 लोकसभाएं हो चुकी हैं। अब 18 लोकसभा वॉज कंस्टिट्यूटेड इन जून 2024
और 2024 में कौन सी लोकसभा इलेक्शन मतलब एक तरह से होंगे या गठन होगा। जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद वो जीतते हैं और उसमें आते हैं तो एक लोकसभा का गठन हो गया, नेक्स्ट 5 ईयर्स में फिर होता है। तो अभी तक 17 हो चुकी थी और जून 2024 में कितनी हो गई, 18th हो गई। अब ये जो संसद भवन, ये पुरानी संसद भवन का फोटो यहाँ दिया गया है और यहाँ पर जो है न्यू संसद भवन का फोटो दिखाया गया है। अब कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, अब कंपोजिशन यहाँ पर क्या है पार्लियामेंट का, किस तरह से वो बना है। द इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। अब इंडियन पार्लियामेंट में क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं और 2 हाउसेस होते हैं, जिसमें से एक है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस। दूसरा है राज्यसभा, जिसमें काउंसिल होते हैं स्टेट्स की या अपर हाउस जिसे बोला जाता है। दिस स्ट्रक्चर विद 2 हाउसेस, अब ये क्या है, 2 हाउसेस का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें 2 हाउस हो गए, अपर हाउस और लोअर हाउस, इज कॉल्ड बाई कैमरल सिस्टम। इसे क्या बोला जाता है, बाई कैमरल। बाई मीन्स 2 एंड कैमरल मीन्स चैम्बर और हाउस। तो बाई कैमरल सिस्टम इंडिया में है। लोकसभा चैम्बर जो है ये रहा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में। अ व्यू ऑफ द चैम्बर ऑफ द राज्यसभा टेकन फ्रॉम द प्रेस गैलरी। तो प्रेस गैलरी से जब इसका फोटो लेते तो इस तरह से दिखता है। नाउ द पीपल ऑफ इंडिया चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लोकसभा थ्रू अ डायरेक्ट इलेक्शन। अब हमने जो है पढ़ा था कि जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, जो लोग हैं इंडिया के, वो लोकसभा के लिए जो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको डायरेक्ट इलेक्शन से चुनते हैं, जो कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ दिस हाउस एनवाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज 550। जो मैक्सिमम नंबर इसके हो सकते हैं इस सदन के लिए कितने हैं, 550। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्ट्रोल कॉलेज दैट यू रीड अबाउट इन प्रीवियस चैप्टर। और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली जो है चूज किए जाते हैं। बोथ द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स अलोकेट द नंबर ऑफ MPs रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा। सो जो नंबर ऑफ राज्यसभा सीट है वो कितनी अलोकेड है, मतलब कितने जो है किस पॉपुलेशन में, किस स्टेट को कितने MP जो है उसमें आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। तो राज्यसभा में हर स्टेट के लिए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कि इस स्टेट से इतने MP आ सकते हैं, इस स्टेट के लिए इतनी सीट्स हैं तो इतने MPs में राज्यसभा में इस जगह से आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है उनके पॉपुलेशन पे कि उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है। नाउ we are aware that several aspects of Indian constitution were drawn from the constitution of other countries। अब हमें पता है कि जो हमारे constitution में जो अलग अलग चीज़ें ली गई हैं या कुछ चीज़ें जो aspects लिए गए हैं वो अलग अलग देशों के constitution से लिए गए हैं। ब्रिटेन सिस्टम इंस्पायर्ड अवर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली थी यानी कि जो पार्लियामेंट सिस्टम था वैसा ही हमारा भी उसी तरह का है। However, there were also experiences that our freedom fighter and constitution maker had the practical experience gained through participation in British colonial governance structure, even if it in a very limited way, that provided familiarity with parliamentary procedures। अब देखो इसमें क्या था, जैसा भी है उन्होंने क्या किया था, जो पार्लियामेंट था ब्रिटेन का जो था तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे या जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके पास जो है ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नेंस के जो स्ट्रक्चर है उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। ज़्यादा नहीं था क्योंकि वो उसमें पार्टिसिपेट करते रहते थे, जैसे दादा भाई नौरोजी के बारे में पता चला हमें, वो उसमें एक पार्ट थे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जिनके पास उनका थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास था, लिमिटेड वे में था, लेकिन वो उस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से एक तरह से वाकिफ थे, उन्हें पता था कि किस तरह से काम करता है। द मेमोरी ऑफ एंशियंट रिपब्लिक, महाजनपद और पहले जैसे जनपद काम करते थे उनकी जो यादें थी, मेमोरी थी। द विलेज पंचायत वेयर एल्डर्स मेड कलेक्टिव डिसीजन, और विलेज पंचायत के बारे में भी पता था जैसे कि हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही हमारी ये पार्लियामेंट्री सिस्टम बना। एक्सटेंसिव डिसीजन टुक प्लेस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग वेदर इंडिया शुड हैव अ बाई कैमरल सिस्टम। अब सबसे ज़्यादा जो है इसमें डिस्कशन जिस चीज़ का हुआ था वो था क्या हमारे पास भी या इंडिया में भी जो बाई कैमरल यानी कि जो लोकसभा राज्यसभा 2 हाउसेज जो बने हैं क्या उसी तरह के होने चाहिए या उसी तरह से 2 ही हाउस बनाने या एक बनाना है। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हुआ वो इसी टॉपिक पर हुआ। इट वॉज फेल्ड अ सिंगल डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस would be inadequate to meet the challenges independent India would face। और
लोगों को ये फील हुआ कि अगर हम एक ही हाउस बनाएंगे तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है, ब्रिटेन जो भी था सब चीज़ें ले गए हैं, यहाँ से कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों को उन्हें सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बहुत सारी चुनौतियां अभी उनके सामने आने वाली हैं। तो एक हाउस डायरेक्टली उसका शायद सामना सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इट वॉज फेल्ट दैट अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स द राज्यसभा वॉज नीडेड। तो इस तरह से, इसी की वजह से जो फेडरलिज्म था यानी कि जो संघवाद थी, उसकी भावना की वजह से जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्यसभा, मतलब उन्होंने सोचा कि राज्यसभा की जरूरत है। द कंपोजिशन एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्शन टू द राज्यसभा वर ऑल्सो डिजाइन टू बी डिफरेंट। लेकिन ये बनेगी किस तरह से, इनका इलेक्शन किस तरह से होगा राज्यसभा का, वो अलग तरह से डिजाइन किया गया। इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म which is a form of government where power is distributed between the center, state as well as local governments। अब इंडिया ने जो है फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया, इसमें जो है अलग अलग जो है गवर्नमेंट थी जिनकी पावर भी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, यानी कि जो अलग अलग जगह हैं, जैसे कि सेंटर में जो एमपी बन के आएगा उनकी पावर अलग है, जो स्टेट में एमएलए होंगे उनकी पावर अलग है। लोकल गवर्नमेंट जैसे गांव में अगर पंचायत वगैरह होती है तो सरपंच की क्या क्या जो है पावर्स होंगी वो अलग है। तो हर जगह पे गवर्नमेंट अलग से डिसाइड होगी और उनकी पावर भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी ताकि काम इजीली हो। दिस सिस्टम हेल्प टू कीप द बैलेंस बिटवीन द नेशनल यूनिटी एंड लोकल इंटरेस्ट। तो इससे क्या होगा, सिस्टम बैलेंस में रहेगा, नेशनल यूनिटी भी बनी रहेगी और लोकल इंटरेस्ट भी जो है सही रहेगा। फंक्शन, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज अ प्रीसाइडिंग ऑफिसर टू एंश्योर दैट डिबेट्स एंड डिस्कशन आर कंडक्टेड इन अ ऑर्डरली मैनर। अब हर एक हाउस में, जो पार्लियामेंट हाउस है उसमें क्या है, एक ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसे बोलते हैं। वो क्या देखता है कि जो भी डिबेट्स होंगे या डिस्कशन होंगे वो ऑर्डरली या सही तरीके से होने चाहिए। इन द लोकसभा द मेंबर इलेक्टेड अ स्पीकर। लोकसभा में एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है जिसको स्पीकर बोलते हैं, जो कंडक्ट करता है सेशन को, अलाउ करता है मेंबर को बोलने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करता है और इंश्योर करता है कि जो भी रूल्स है वो फॉलो किए जाए। द राज्यसभा इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और राज्यसभा में क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही ये मतलब पोजीशन दी जाती है जो लोकसभा में स्पीकर की होती है। हु एक्ट एज इट्स चेयरपर्सन, जो है वहां पर एज अ चेयरपर्सन काम करता है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है द सेंगोल, अ गोल्ड प्लेटेड सिल्वर स्केप्ट्रेट। अब ये क्या है, डेकोरेटेड रोड कैरिड बाय अ किंग और क्वीन एट सेरेमनीज एज अ सिंबल ऑफ देयर पावर। तो इस तरह की एक सोने की जो है छड़ी आप बोल सकते हैं, बिल्कुल सोने गोल्ड इसके ऊपर लगा होता है। जो राजा या रानी वगैरह जब उन्हें किसी इंपॉर्टेंट सेरेमनी में दिखा जाना होता है तो इसको साथ लेकर जाते हैं अपनी पावर शो करने के लिए। तो ये एक सेंगोल है, ठीक है। इसको वो symbolically handed over to Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, on 14 August 1947 on the occasion of Indian independence as a powerful symbol to mark the transfer of power। तो ये जो सेंगोल था ये सबसे पहले जो है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनको, जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको हैंड ओवर किया गया था, उनको दिया गया था। कब, 14 अगस्त 1947 को, जब इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस मिली थी। ये क्या था, एक पावरफुल सिंबल था। इससे ये पता चला था कि इन लोगों ने अपनी पावर ट्रांसफर कर दी है, हैंड ओवर कर दी है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इट इज नाउ प्लेस्ड नियर द स्पीकर्स चेयर इन द न्यू लोकसभा। अब ये कहाँ पर है, जो न्यू लोकसभा है वहां पर जो स्पीकर बैठते हैं उसके पास में एक जगह है, वहां पर इसे रखा गया है। एंड सर्व्ड एज अ सिंबल ऑफ राइटिजियस एंड जस्ट रूल। और ये जो है साथ में ये भी बताते हैं, एक सिंबल है जो बताता है कि आप सही ढंग से और अच्छे से रूल करेंगे। डेटिंग बैक टू द चोलास पीरियड, अगर आप चोला पीरियड में जाते हैं, द सेंगोल वॉज हैंडेड टू न्यू रूलर्स एज अ रिमाइंडर दैट पावर मस्ट बी गाइडेड बाय द धर्मा एंड राइटिजियस। चोला पीरियड में जाते तो वहां भी ये सेंगोल जो है हमेशा नए रूलर को हैंड ओवर किया जाता था, जिससे कि ताकि वो हमेशा एज अ रिमाइंडर ये दिया जाता था कि वो हमेशा याद रखे कि ये जो पावर है ये धर्म और सही तरीके से यूज होनी चाहिए, गलत तरीके से पावर का यूज नहीं करना है। एट इट टॉप सिट्स नंदी सिंबलाइज जस्टिस। इसके ऊपर जो है नंदी होती है, जो ये देखो, ठीक है, नंदी जो कि बताता है, सिंबलाइज करता है जस्टिस को। To help make parliamentary discussion accessible to all, translation service are provided in multiple Indian languages।
अब पार्लियामेंट्री डिस्कशन में क्या होता है, कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई इंग्लिश में बोल रहा है, कोई बंगाली में बोल रहा है, कोई तमिल तेलुगु, मतलब सब अपनी अपनी कन्नड़ लैंग्वेज इस तरह से अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। तो पार्लियामेंट्री में क्या होता है, ट्रांसलेशन सर्विस जो है प्रोवाइड की जाती है हर एक के लिए, मल्टीपल बहुत सारी लैंग्वेजेस में। प्रीवियसली पहले क्या था, इंटरप्रिटेशन वॉज अवेलेबल इन 12 लैंग्वेज, सिर्फ 12 लैंग्वेज में जो है ये इस तरह से ट्रांसलेशन होता था। मेनली क्या थे, हिंदी, इंग्लिश, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, पंजाबी एंड तेलुगु। रिसेंटली अब क्या हो गया, 6 मोर लैंग्वेजेस जो है इसमें ऐड की गई हैं, ये 12 तो है ही, इसके साथ 6 और हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू एंड संस्कृत। तो इन लैंग्वेजेस में भी यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसलेट हो जाता है, जस्ट आपको वो अपना हेडफोन या जो भी यूज़ करना हो वो लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं, और जिस लैंग्वेज में उन्हें वो स्पीच या वो जो भी डिबेट चल रही है उसे सुनना है उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ कर सकते हैं। मोर लैंग्वेजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी एडेड इन द फ्यूचर, और इसके साथ ये भी लग रहा है कि और भी लैंग्वेजेस इसमें साथ में ऐड की जाएंगी। द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अब एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कानून लागू होते हैं वो वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पार्लियामेंट की है। इंश्योर करता है डेट लॉ आर इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स, कि लॉ जो है इम्प्लीमेंट किए गए हैं और यूज भी किए जा रहे हैं। इज एन इम्पोर्टेंट एज इट्स लेजिस्लेटिव फंक्शन, वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना और फोर्स मतलब इनफोर्स करना, उनको लागू करना, दोनों ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव फंक्शन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव गिव्स लाइफ टू द लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड पावर टू द पार्लियामेंट, पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये क्या करते हैं, जो लेजिस्लेटिव हैं, जो यूनियन है एग्जीक्यूटिव, वो क्या करती है, लाइफ देती है लेजिस्लेटिव फंक्शन को और पावर देती है किसको, पार्लियामेंट को। अब देखो लेजिस्लेटिव ने क्या किया, रूल बना दिए, लेकिन अगर वो रूल या फिर वो जो भी लॉ बने हैं अगर वो यूज़ ही नहीं होंगे, उनको लागू ही नहीं किया गया, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन जो काम करता है, जो लॉ बनाते हैं, उनको लाइफ कौन देता है, एग्जीक्यूटिव, जब वो उन्हें इन्फोर्स करते हैं इस तरह से, ठीक है। और साथ में पार्लियामेंट को पावर भी मिलती है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से मेंबर होते हैं, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये सब लोग होते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज चूजन फ्रॉम अमंग द एमपीज ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब ये जो काउंसिल है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो उसमें होगा, लेकिन एक काउंसिल बनती है अलग से मिनिस्टर की। अब इस काउंसिल में जो है वो कौन से लोग होते हैं, दोनों हाउसेज से जो एमपीज होते हैं उनमें से चूज किया जाता है। दिस मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबली टू द लोकसभा, ठीक है, वो लोकसभा में ही जो है उत्तरदायी है, मतलब उसी के एक पार्ट होते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये डिस्कस करते कि है क्या। सो लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द की फंक्शन दैट द पार्लियामेंट नीड टू फुलफिल। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो चीज़ें बताई गई हैं जिनका काम है कि पार्लियामेंट को किस तरह से काम करना और किन चीज़ों को फुलफिल करना है। दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। अब उनको जो है इनके अंदर जो है एक्सप्लेन किया गया है। सबसे है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। सो अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। सो फ्रॉम योर प्रीवियस लेसन ऑन द थीम ऑफ डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, नेम अ फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। कौन कौन से हैं? डिड यू लिस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? What about amendment of the constitution? कौन कौन से amendment हुए हैं? Indeed, these are vital constitution function of the parliament. ये जो बहुत ज़रूरी आप बोल सकते हैं महत्वपूर्ण कार्य हैं, काम फंक्शंस बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्लियामेंट के। अगर कहीं पे उन्हें लग रहा है कि कोई लॉ सही से काम नहीं कर रहा है तो उसमें चेंज करने, अमेंडमेंट करने, ये हमेशा चलता रहता है। देयर आर अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट वी विल एक्सप्लोर इन हायर ग्रेड्स। इसके बाद कुछ और भी हैं जो हम हायर ग्रेड में पढ़ेंगे। So the parliament has important constitutional function like electing the president and vice president, making and changing law, holding the government accountable. Yes, I did list the election of the president and vice president as key function, as these elections play an important role in how the parliament work in our democracy. What about amendment of the constitution? So the parliament has a power to make amendment to the constitution. This means it can change or update parts of the constitution
to meet the need of the country. Amendments help keep the constitution relevant and strong as India grows and changes. So, the parliament is directly entrusted with upholding the core value of the Indian constitution, including अब पार्लियामेंट को जो है ट्रस्ट किया जाता है किन चीज़ों में, जो मेन कोर वैल्यू जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको वो लागू करेंगे या उनको होल्ड करके रखेंगे कि ऐसे ही काम होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की अकॉर्डिंग क्या करेंगे वो लोग काम करेंगे. फर्स्ट, अनेबलिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. सबसे पहले क्या करना है, अनेबल करना है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. ठीक है, जो हमने ऑलरेडी देखा. फॉलोइंग द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये आपने ऑलरेडी 7th क्लास वाले बुक में पढ़ा है इनके बारे में. ठीक है, सेपरेशन होना चाहिए पावर का लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर. ठीक है, एंश्योर करना है फेडरलिज्म and upholding fundamental rights and directive principle of state policy by farming laws and policies. जो भी कानून या जो भी राइट्स या नीतियां बनाई जाएंगी उसमें जो फंडामेंटल राइट्स है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उनको देख कर ही, यानी कि उनके साथ कोई छेड़खान नहीं होनी चाहिए. तो जो भी लॉ बनेंगे, पॉलिसीज बनेंगी, वो इनको ध्यान में रखकर ही बनाई जाएंगी. सेकेंड आता है लॉ मेकिंग. सो बिल, एक बिल क्या होता है, अब बिल इज अ ड्राफ्ट होता है जो प्रपोज करता है लॉ को, डेट नीड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी एक्टेड इनटू लॉ. सो लॉ जो है बनने से पहले उसका नाम बिल रखते हैं. बिल, अगर कोई भी लॉ आपको बनाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, पनिशमेंट क्या होगी, बेल होगी या नहीं होगी, किस तरह से होगा, तो उसका पूरा एक प्रॉपर ड्राफ्ट बनाया जाता है. उसके बाद पार्लियामेंट में उसे दिखाया जाता है, प्रपोज किया जाता है, और जब सब लोग उसे जो है अप्रूव कर देते हैं उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो उस पर हाँ लिखेंगे, मतलब साइन करेंगे, उसके बाद ही वो लॉ बनेगा. सो लॉ मेकिंग अमंग द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव इज टू मेक लॉ. तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इनकी, लॉ बनाना. द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड आउट एन एलोबरेट एंड राइजियस प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग. तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए भी है कि आपको किस तरह से जो है लॉ बना सकते हैं. तो पूरा एलोबरेट किया गया है, पूरा मतलब विस्तृत तरह से उसको बताया गया है, और बहुत ही कठिन आप प्रक्रिया बोल सकते हैं. द लॉ इज जनरली ब्रोट इनटू फोर्स थ्रू एन इंस्ट्रूमेंटल कोड एंड एक्ट. तो लॉ को जब भी आपको फोर्स करना है, यानी कि जब भी उसको लागू करना है, तो उसके लिए एक आपको एक्ट करना होता है, जिसे अधिनियम नाम दिया गया है, जिसे एक्ट बोलते हैं. अब बिल, एक बिल होता है जो अभी हमने देखा, विच इज़ अ ड्राफ्ट. वो क्या होता है, ड्राफ्ट होता है जो लोग वो प्रपोज करना चाहते हैं, जो लोग वो लागू करना चाहते हैं. इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा. एंड गोज थ्रू अ लॉन्ग एंड एफर्टफुल जर्नी बिफोर इट्स बिकम एन एक्ट. उसकी बहुत लंबी और एफर्टफुल जर्नी होती है, मतलब सबको बताना है कि आप लोग ऐसा क्यों लेकर आ रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले जो चल रहा था उस वो सही क्यों नहीं है, या नया लॉ की क्यों ज़रूरत है. तो ये सब चीज़ें उन्हें बतानी पड़ती है. तो एक बहुत लंबी और जो है एफर्टफुल जर्नी होती है जब तक कि वो एक्ट में नहीं आ जाता है. गिवन बिलो इज अ जर्नी ऑफ हाउ अ बिल बिकम एन एक्ट. तो नीचे जो है पूरी जर्नी दी गई है कि किस तरह से एक बिल एक एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है. एंड अल्टीमेटली अ लॉ, और उसके बाद लास्ट में जाकर वो एक लॉ बनता है. इन द केस ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009. अब ये जो है 2009 जो RTE लगा था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. सो मोस्ट पीपल कॉल मी RT. ज़्यादातर लोग मुझे क्या बताते हैं, RTE, राइट टू एजुकेशन. आई केम इन टू एग्जिस्टेंस इन अगस्त 2009. दो द आइडिया बिगेन ऑलमोस्ट अ सेंचुरी बिफोर. ये कब आया एग्जिस्टेंस में, 2009 में, और ये कब शुरू हो गया था, 1 सेंचुरी बिफोर, यानी कि 100 साल पहले ही. माई रूट्स लाई इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जो रूट्स हैं, वो इंडिया के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो बताए गए, सिद्धांत बताए गए हैं, उन्हीं में है. दो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वांटेड मी इम्प्लीमेंटेड विद इन अ डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंस के 10 साल के अंदर ही मुझे लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए. दिस डिडेंट हैपन, लेकिन ये नहीं हुआ. लिविंग काउंटलेस चिल्ड्रन विदाउट एक्सेस टू एजुकेशन, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाई. इन द अर्ली 1990 someone argued in the court that I was inherently part of the fundamental right in the constitution, namely the right of to life, and education is important to lead a meaningful life.
सो 1919 में क्या हुआ, किसी ने जो है क्या किया, कोर्ट में गए और इसके लिए आर्ग्यू किया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उसका एक पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये अधिकार मिलना चाहिए, द राइट टू लाइफ, की एजुकेशन जो है इम्पोर्टेंट है, किसी की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पार्लियामेंट्री एक्शन बिगेन सम ईयर लेटर, उसके बाद इससे रिलेटेड पार्लियामेंट्री जो एक्शंस लिए गए विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 86 जो है अमेंडमेंट हुआ, चेंज हुआ एक्ट 2002 विच मैंडेटेड एन आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट। अब इसमें क्या हुआ था, 2002 में ये एक्ट जो है आया के साथ शुरू हुई, जिसमें संविधान के जो आर्टिकल 21A है उसमें क्या किया गया, उसके लिए कंपलसरी किए गए डेट द स्टेट, अब ये क्या स्टेट करता है, शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ टू ऑल द चिल्ड्रन, कि हर एक बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी बिटवीन द एज 6 to 14, जो भी 6 से 14 ईयर्स के बच्चे हैं उन सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। 6 ईयर लेटर, 6 साल बाद, आई वॉज टेबल्ड एज अ बिल इन द राज्यसभा, मुझे जो है एक बिल के रूप में राज्यसभा में लेकर आए। द कमेटी स्टडीड मी थ्रूली एंड सजेस्टेड मॉडिफिकेशन, अब वो कमेटी ने मुझे सही से पढ़ा और बहुत सारे सजेशन बताए। द मेजर डिबेट कंसर्न फंडिंग, अब मेजर डिबेट जो थी उसमें था फंड, न्यू स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर्स फॉर मिलियन ऑफ चिल्ड्रन वुड बी कॉस्टली। अब इतनी सारी चीज़ें, नए स्कूल, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, इतने सारे बच्चे तो उनके लिए टीचर भी होने चाहिए। सो बाय 2008 द MPs डिटरमाइंड इट वॉज टाइम, तो उन्हें लगा कि अब टाइम आ गया है। आफ्टर द 2009 इलेक्शन, 2009 की इलेक्शन के बाद द न्यू गवर्नमेंट परस्यूड द मैटर एंड इन अगस्त 2009, अब 2009 में क्या हो गई, इलेक्शन हो गई। इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट जो आई उन्होंने क्या किया, मुझको परस्यू किया, यानी कि आगे जैसे चल रहा था ऑलरेडी, तो इस बिल को आगे उन्होंने भेजा और 2009 में इसको लागू किया गया। आई वॉज पास्ड इन लोकसभा एंड रिसीव द प्रेजिडेंट एसेंट, बिकम एन एक्ट, लोकसभा में पास हो गए और प्रेजिडेंट का एसेंट भी मिल गया, यानी कि कंफर्मेशन आ गया वहाँ से और वो एक एक्ट बन गया। टुडे आई एम एनेबल्ड द क्रिएशन ऑफ लीगल पाथवेज फॉर चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल, facilitate new school construction and ensured free books and uniform for children। तो आज जो है इसकी वजह से, मेरी वजह से क्या हो गया, मतलब वो बिल बता रहा है अनेबल किया कि इसको क्रिएशन ऑफ लीगल पाथवे, कि बच्चे जो हैं स्कूल जा पाए, ठीक है, नए स्कूल जो हैं बनाए जाएं और इंश्योर की जाए कि बच्चों को फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म भी दी जाएगी। नाउ फ्रॉम बिल टू एक्ट, बिल से एक्ट बनने का द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन द पार्लियामेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है किसी भी हाउस में, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, देन बिल को रीड किया जाता है, रेफर्ड किया जाता है जो स्टैंडिंग कमेटी होती है। अब स्टैंडिंग कमेटी क्या है, इट इज़ अ परमानेंट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ MP। अब MP होते हैं इसमें, MP जो है चेंज होते रहते हैं लेकिन कमेटी सेम रहती है। डैट स्क्रूटिनाइज गवर्नमेंट एक्टिविटीज एंड मेक रिकमेंडेशन एंड आस्क क्वेश्चंस ऑन एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो ये कमेटी क्या करती है, बिल को सही से पढ़ती है, देखती है क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं वो सब गवर्नमेंट से बताती है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब उनसे पूछती है कि यही बिल क्यों या ऐसा ही क्यों लेकर आए, वो सब कुछ। देन टेक अप फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, अगर सही लगता है तो उसको कंसिडरेशन में लेते हैं, पास करते हैं। क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन होता है, अमेंडमेंट के लिए बोर्ड्स होते हैं कि कौन कौन इस जो है बिल के या जो है पक्ष में है, कौन वे पक्ष में है, तो वो सब वोट किया जाता है। उसके बाद वोटिंग हो गया बिल पे। प्रोसेस अगर नहीं होता है तो फिर से रिपीट होता है, वो चेंजेस होते हैं। अब दूसरे हाउस में जाएगा तो दूसरे हाउस में सेम प्रोसेस जो ऊपर से हुआ वो फिर से होगा और लास्ट में प्रेसिडेंट एसेंट के पास जाता है और गैजेट नोटिफिकेशन निकाला जाता है। जब गैजेट नोटिफिकेशन निकलेगा तो वो बिल जो है एक एक्ट बन जाता है। रीडिंग द ओरिजिन्स आर इन British Parliament. Many MPs were illiterate, so a clerk would read out the content of the bill for the MPs to discuss. Today's MP read the bill before the discussion take place. अब पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो होते थे बहुत सारे MP जो है इलरिटेड थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो भी क्लर्क होता था वो आके बिल के कंटेंट MPs को बताता था और वो पढ़ते थे। लेकिन आजकल जो है वो पहले ही बिल को पढ़ लेते कि ये बिल आने वाला है और उसके अकॉर्डिंग वो डिस्कशन करते हैं।
क्लोज क्या है? दीज आर पार्ट्स ऑफ अ बिल दैट एक्सप्लेन द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द बिल। क्लोज क्या है? अब क्लोज में बोला डिस्कशन होता है, तो स्पेसिफिकली जो है डिटेल्स होती हैं, पार्ट्स हैं बिल के, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं, क्लोज 1 क्लोज 2 पैराग्राफ बोल सकते हैं। तो क्लोज 1 क्लोज 2 के अकॉर्डिंग जो है स्पेसिफिक डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है पूरे बिल को। आरटीआई डिफाइन द एज ग्रुप ऑन टू विच इट एम्प्लाई 6 to 14 ईयर्स, इस तरह से। गैजेट ये क्या है? ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन है जो अनाउंस करता है लीगल डॉक्यूमेंट्स को और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। ड्रॉ अ स्मॉल चार्ट टू शो द प्रोसेस ऑफ हाउ आरटीआई बिकम एन एक्ट। व्हाट डू यू थिंक द प्रोसेस वुड बी if RTI has been tabled in Lok Sabha? So the Right to Education RTE Act become law through a step-by-step process in Parliament. Below is a chart showing how it become an act. सबसे पहले the idea of free and compulsory education comes from the directive principle in Indian Constitution after independence. Step 2, 1990 में court said education is a part of the right to life, so it is very important. Step 3, Parliament passes the 86th Amendment 2002, adding Article 21A for free compulsory education for the children aged 6 to 14. Step 4, the bill was tabled in the Rajya Sabha in 2008, 6 years after 86th Amendment. Step 5, a committee studied the bill and suggested changes. The main debate was about funding for schools, infrastructure and teachers. Step 6, after the 2009 election, the government passed the bill in the Lok Sabha in August. Then it received the president assent and became an act. So if it has been introduced in the Lok Sabha first, अगर लोक सभा में होता तो क्या होता? The bill would be introduced in the Lok Sabha by the Minister of Education representing the government. The bill would be debated and possibly sent to the committee to review. After committee review, the bill would be debated again in Lok Sabha. फिर से वही चीज होती। Lok Sabha would vote and pass the bill. Then the bill would be go to the Rajya Sabha for debate and vote. And after approval from both the houses, the bill would receive the president assent and become an act. Some type of bill have to be tabled only in Lok Sabha. One example is a money bill that is concerned with financial matter, इंक्लूडिंग टैक्सेशन, गवर्नमेंट बॉर्निंग एक्सेट्रा। अब कुछ जो है कुछ इस तरह के अलग अलग बिल भी होते हैं जिनको जो है सिर्फ लोकसभा में ही अगर पेश हो जाएं, वो लोकसभा में ही अगर हो जाएं तो मतलब एक ही जगह पर उन्हें पेश करना जरूरी है, जैसे कि लोकसभा। जैसे एक बिल है मनी बिल, ये क्या है? फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, टैक्स वगैरह, गवर्नमेंट बोरिंग एक्सेट्रा, तो ये सिर्फ लोकसभा में ही चलता है। इट इज़ एसेंशियली अ ड्राफ्ट लॉ डेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। तो ये क्या है? ड्राफ्ट लॉ होता है जो क्या है सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस्ड होगा। हाउएवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, अब जो इंट्रोडक्शन होती है बिल की वो प्रायर रिकमेंडेशन होता है प्रेसिडेंट से, उसमें जो है प्रेसिडेंट की सिफारिश भी मतलब पहले से ही उनकी रिकमेंडेशन इसमें होनी चाहिए, उसके बाद वो डायरेक्टली लोकसभा में ही पास होता है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। अब एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी क्या है? द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या है? यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है ये भी। दे आर primarily responsible for implementing and enforcing laws and overseeing the effective running of the government. अब ये जो है सबसे पहले इनका काम क्या है कि ये देखना है जो भी लॉ बने हैं वो इम्प्लीमेंट हो, ठीक है, लागू करना और मतलब एनफोर्स करना, बनाना, लागू करना और देखना कि उनके जो इफेक्ट है गवर्नमेंट पे वो किस तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मतलब वो सही से चल रहा है या नहीं। टेक डिसीजन रिगार्डिंग द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स लॉ। साथ में ये भी देखना कि जो डिसीजन उन्होंने लिए गए हैं रिगार्डिंग द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है, जो हमारे कानून है उसके अकॉर्डिंग सरकार ने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो डे टू डे फंक्शनिंग में यानी कि हर रोज के कामों में किस तरह से सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या संविधान के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं या नहीं। आंसरेबल टू लोकसभा, अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आंसरेबल होंगे, उन्हें आंसर देना होगा। थ्रू मैकेनिज्म लाइक क्वेश्चन आर, जैसे कि क्वेश्चन आर स्पेशल एक उनका टाइम होता है जिसमें मंत्री जो है क्वेश्चन पूछते हैं विच रिक्वायर मिनिस्टर टू जस्टिफाई देयर एक्शन एंड डिसीजन। जहाँ पे किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमपीज ही आपस में क्वेश्चन पूछते हैं
और किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मिनिस्टर को उसका आंसर देना होता है अपने एक्शंस का और डिसीजन का। द क्वेश्चन आर इन द लोकसभा इज अ सिलेक्ट पीरियड, टिपिकली द फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन। तो फिक्स होता है, सिलेक्ट पीरियड होता है, पहला मतलब जो फर्स्ट आवर होते हैं पार्लियामेंट सेशन का उसे ही क्वेश्चन आवर बना दिया गया है। वेयर एमपी कैन आस्क द मिनिस्टर क्वेश्चंस अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज, जहां पर एमपी जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्टर से उनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड। इट इज अ प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट, अब ये पार्लियामेंट की एक प्रोसेस है डेट होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, जो क्या करती है, होल्ड करती है, मतलब पार्लियामेंट जो भी एग्जीक्यूटिव है जिन्होंने लॉ बनाया लागू किया उसको अकाउंटेबल है, यानी कि उन्हें आंसर देना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा उन्हें अपने हर एक एक्शन को, डिसीजन को। स्पेशल कमिटीज ऑल्सो होल्ड मीटिंग वेयर मिनिस्टर हैव टू एक्सप्लेन एंड आंसर क्वेश्चन अबाउट देयर पॉलिसीज। अब जो स्पेशल कमिटीज होती हैं वो भी अलग अलग जो है अपनी मीटिंग्स रख सकते हैं जिनमें मिनिस्टर को अपनी पॉलिसीज को एक्सप्लेन करना होता है और आंसर देना होता है। These committees may include MP from different political parties. अब इन कमेटी में क्या है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के MP भी हो सकते हैं। सो द पार्लियामेंट इजंट ऑलवेज फॉर्मल एंड सीरियस, तो पार्लियामेंट हमेशा फॉर्मल और सीरियस नहीं होती। समटाइम द एटमोस्फेयर इज सेट थ्रू पोइट्री एंड ह्यूमर, कई बार जो है पोइट्री और ह्यूमर से भी एटमोस्फेयर को सेट किया जाता है। जैसे वर्ड्स इन द पार्लियामेंट वाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट of the year 25-26 on 1st February 25, Srimati Nirmala Sitharaman recite the following verse of Tirukural, an ancient Indian treatise in Tamil on aesthetic and morality. So जब 1 फरवरी 2025 को 25-26 सेशन के लिए, ठीक है, जो यूनियन बजट पेश हुआ था, तो उसमें जो श्रीमती निर्मला सीतारमन है उन्होंने तमिल का एक वर्स यहाँ पर मतलब एक रिसाइट किया था, बताया था, जिसमें जो है मेनली नैतिकता और किस तरह से मोरलिटी वगैरह उसकी बात की गई है। तो ये जो उन्होंने बोला इसका मतलब क्या था, जस्ट एज लिविंग बीइंग लिव एक्सपेक्टिंग रेन्स, सिटीजन लिव एक्सपेक्टिंग गुड गवर्नेंस। तो उन्होंने बोला कि जैसे जो भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, वो किसकी चीज़ मानते हैं, किस चीज़ को चाहते हैं, बारिश, उसी तरह से जो सिटीजन है वो हमेशा गुड गवर्नेंस चाहते हैं। On hearing this, इसको सुनने के बाद there was an enthusiastic tumbling on desk from the treasury benches। तो लोगों ने मतलब वहाँ पे जब थे वो, तो उनके जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनमें क्या है, सब लोगों ने मतलब एक थपथपाई, एक तरह से ताली बजाई ये बात सुनने के बाद में। सेकंड है, in 2011 during a spirited debate in the Lok Sabha, parliamentarian सुषमा स्वराज quoted a poetic verse to criticize the government। तो उन्होंने जो है कोट किया था, एक पोइटिक वर्स था जो उन्होंने बोला वहां पर, जिसमें उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट थी उसको क्रिटिसाइज किया था। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बात की खलीफा क्यों लुटा, हमें रह जानों से गिला नहीं, तेरी रहबारी का सवाल है। सो यहाँ पर क्या मतलब है, डोंट चेंज द टॉपिक को चेंज मत करो, जस्ट से व्हाई द कारवान्स आर लूटेड, कि यहाँ पर जो है इस तरह की हरकतें क्यों ही, उनकी लूटे क्यों गई वो जगह या चीज़ें जो थी। वी हैव नो कंप्लेंट विद द रोवर्स, हमें लुटेरों से तो कोई शिकायत ही नहीं है, बट दिस इज अ क्वेश्चन ऑन योर लीडरशिप, लेकिन ये सवाल तो तुम्हारी लीडरशिप पे है कि तुम्हारी लीडरशिप की वजह से या तुम्हारी लीडरशिप में जो है वो कारवान, वो काफिले को जो है लूट लिया गया था। इन रिस्पॉन्स द देन प्राइम मिनिस्टर, सो इसके रिस्पॉन्स में जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर से डॉक्टर मनमोहन सिंह कामली रिप्लाइड विद अनदर पोएटिक लाइन। तो उन्होंने बिल्कुल आराम से पोएटिक लाइन में बोला, मन की तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। सो वो बोलते कि आई एडमिट दैट आई एम नॉट वर्दी ऑफ योर साइट, कि मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे दृष्टि के योग्य नहीं, तुम्हारे देखने के लायक नहीं हूँ। यू शुड लुक एट माई जील, यानी कि मेरा जो उत्साह है और मेरा जो प्रेजर्वेंस है तुम उसको देखो। नाउ co-location of आयुष facility at primary health center, community health center and directive hospitals. So 1.2.1 the committee at this juncture noticed that in some states and the UT a separate department जो है बनाया गया है आयुष, जो है कई जगह पर नहीं ओपन किया। The committee to boost the Ayush system and for better coordination in Ayush healthcare recommendation, the Ministry of House to impress upon and pursued
the state and UT with no separate department of Ayush to create such a department for speedy development and implementation of Ayush sector and scheme रिस्पेक्टिवली। अब जो है कुछ रिकमेंडेशन उनके पास आते रहते हैं, जैसे कि एक आया उनके पास कि जो आयुष है कमेटी को स्पेशली इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कुछ स्टेट और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पर आयुष के नाम से, आयुष का एक कार्ड है जिसमें जो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, वो जस्ट आपको दिखाना होता है आयुष कार्ड से। तो कुछ जो है जगह हैं, डिपार्टमेंट है, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर आयुष का अलग से डिपार्टमेंट अभी तक ओपन नहीं हुआ है। सो कमेटी ने क्या किया, अपने आयुष सिस्टम को और बेटर बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, जो हेल्थ केयर था और मिनिस्ट्री थी जो आयुष की, उनको जो है बढ़ावा दिया और बेहतर मतलब और सही से उसको किया जा सके। द स्टेट जिनमें भी, जो भी स्टेट थी, जो भी यूनियन टेरिटरी थी, जहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं थे वहाँ पे बोला कि वहाँ पे अलग से डिपार्टमेंट को बहुत जल्दी स्पीडी डेवलपमेंट के लिए बोला गया और इम्प्लीमेंट किया गया आयुष सेक्टर और स्कीम, सब कुछ वहाँ पर इम्प्लीमेंट किए गए। एक्शन टेकन, अब ये आया, पैरा आया, अब एक्शन क्या लिए गए कि उन्होंने बोला ये सब होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ इज बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, क्रिएशन ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इन द स्टेट एंड यूटी कम अंडर परव्यू ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स। तो इन्होंने बोला कि जो पब्लिक हेल्थ है स्टेट, वो स्टेट से रिलेटेड होगी, तो जो भी यूनियन टेरिटरी है, जो भी स्टेट है जहाँ भी जो है इसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है, वो स्टेट और यूटी के अंडर आते हैं। हाउएवर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ रिक्वेस्टेड स्टेट और यूटी गवर्नमेंट इन डिफरेंट मीटिंग टू क्रिएट सेपरेट डायरेक्टर्स। तो लेकिन जो आयुष है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उन्होंने हर बार जो है स्टेट और केंद्र शासित जो भी यूटीज़ हैं उनको बोला है कि हर एक में जो है आपका सेपरेट जो है आयुष का एक डिपार्टमेंट डेवलपमेंट होना चाहिए और वहाँ पे मैन पावर भी होनी चाहिए इन द स्टेट एंड यूटी, ताकि डेवलपमेंट सही से हो, इम्प्लीमेशन जो है नाम स्कीम का हो सके एज ऑन डेट। और सेपरेट आयुष डायरेक्टरेट जो अवेलेबल हैं 24 बताए गए हैं। अब वो सारी चीज़ें वो बताते हैं कि कितने अवेलेबल हैं, क्या नहीं है। SPMU ये क्या है, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजिंग यूनिट है, और DPMU क्या है, डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है। तो ये सारी चीज़ें वो बताते हैं कि कौन सी रिपोर्ट है, क्या आया है, ये सब चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नाउ गिवन देयर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ मीटिंग बिटवीन द स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर and the officer from the Ministry of Health and Family Welfare. Observe the screenshot above and discuss the following in groups. Who is reporting whom? So the Ministry of Health and Family Welfare report to the Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare, which reviews its work and gives recommendation. What is the subject that has been reviewed? The committee reviewed the co-location of Ayush facility at PHC, CHC and district hospital, and the need for separate department of Ayush in all the states and union territories. Identify the committee's recommendation. So it recommended that state and UT without a department of Ayush should create one for better coordination and faster implementation of Ayush schemes. What is the government reply? So the government replied that the health is a state subject, but 24 states and UT have already set up the separate Ayush directorates. नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। द पार्लियामेंट अप्रूव्स एंड मॉनिटर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू द एनुअल बजट। अब पार्लियामेंट क्या करती है, देखती है क्या क्या काम किया है, मॉनिटर करती है, अप्रूव किया उन्होंने कि इतने इतने पैसे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट मॉनिटर करती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कि कहाँ पे उन्होंने ख़त्म किया है, कहाँ यूज़ किया है, एनुअल बजट के अकॉर्डिंग कितना काम किया, और एग्जामिन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड का टू डिफरेंट मिनिस्ट्री, कि किस तरह से अलग अलग मिनिस्ट्री में कितने पैसे, कितना फंड दिया गया है। वाई डू यू थिंक दैट पार्लियामेंट कीप एन आई ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कि वो क्या क्या खर्च कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। सो पार्लियामेंट कीप्स एन आई ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिकॉज इट इज पब्लिक मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस. It ensures that this money is used properly for people welfare like schools, hospital and roads, and not wasted or misused. Through debates and questions, Parliament check how and where money is spent, making the government accountable to the people and preventing corruption or misuse of the fund. The government is expected to provide the necessary information to the Parliament in a timely and accurate
एक्यूरेट मैनर। जो गवर्नमेंट होती है उसको हमेशा जो है पार्लियामेंट को जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमेशा टाइम से और एक्यूरेट मैनर में प्रोवाइड करवानी होती है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। सो ये हम करेंगे कल, आज हम करेंगे इतना ही। अगर अभी तक इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।